I joined Akash in 9th standard. So I joined early. I gave Anthe in 8th standard. Pretty much a game-changing moment for me. Now I'm competing all across India. Hello dear students, I, Akash Mehta at Akash Plus Byju's welcome you all in this session where we would be discussing what a partial drop is and what should be the strategy for the students who decide to opt for a partial drop. So before that, let me introduce to a great opportunity in the name of Anthe that you have to be a part, to be a student of the Akash Byju's classroom programs with up to 100% scholarships based on the performance that you have in this Anthe exam. This Anthe exam also give you the opportunity to be the member of the topper students of the exam who would be on an all paid trip to NASA. So other than that, our 12 pass students also have the opportunity to write the exam online sitting in the comfort of their home and win up to 50% scholarship in Akash Byju's year-long classroom programs, right? So our dropper batch is at Akash Plus Byju have this advantage that detailed lectures, session notes, detailed assignments and strategy tips would be shared with you. So with the dedicated faculty always there, we would make it sure that your hard work would be converted into a success in your NEET attempt. So now coming to the topic of today. Who is a dropper? What does opting for a drop in NEET means? NEET में जिन बच्चों का किसी कारण की वजह से NEET एग्जामिनेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट, their current attempt was not that much fruitful. Even if those students, अगर वो बच्चे ऐसे ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं जिसमें वो ये सोचें कि हम विद रिगरस प्रिपरेशन हम अगले साल दोबारा इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे सो दैट वी कैन अचीव द सक्सेस इन दिस एग्ज़ाम, इस स्ट्रेटजी को हम ड्रॉप का नाम देते हैं इस कोर्स में, इस फील्ड में, और ऐसे स्टूडेंट्स को नीट ड्रॉपर्स कहा जाता है, राइट? नाउ इस स्ट्रेटजी का एडवांटेज क्या है? व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिंग फॉर अ ड्रॉप इन नीट प्रिपरेशन? वन एडवांटेज इज कि आप जो भी काम करेंगे इस ड्रॉप ड्यूरेशन के दौरान, वो जो भी काम होगा दैट वुड बी डेडिकेटेड फॉर योर नीट प्रिपरेशन. आपको कोई इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि स्कूल में कौन से एग्ज़ाम हो रहे हैं, बोर्ड के कौन से एग्ज़ाम हो रहे हैं. उस चीज़ पे एनर्जी बिल्कुल फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती. ऑल योर एनर्जी कैन बी चैनलाइज्ड टुवर्ड्स योर NEET preparation. Second advantage is that whatever you are doing, you are already familiar with that. So in a way, whenever that topic is being covered in the class, you can revise it then and there, right? And in addition to that, other advantage that you have here is that आपको अपना शेड्यूल बनाते टाइम, अपनी प्रिपरेशन का शेड्यूल बनाते टाइम, when you have already dropped, उस शेड्यूल में आपको स्कूल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एंड फॉर ऑल अदर थिंग्स लाइक प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपको कुछ टाइम एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं. ऑल द टाइम दैट यू हैव कैन बी डेडिकेटेड फॉर योर नीट प्रिपरेशन. दोज आर द एडवांटेजेस दैट यू हैव, बीइंग फेमिलियर विद द सिलेबस एंड बीइंग कंफर्टेबल विद द टाइम. बट नीट प्रिपरेशन में ड्रॉप लेने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. ये डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज ये है कि ड्रॉप लेना in itself it does not guarantee success in the exam. Success would depend upon how much hard work to be put into this strategy while we have opted for a drop. At the same time, you would be alone in this war, right? So many a times throughout the year you might feel like regretting the decision to opt for a drop. Your confidence may take a hit. आपका कॉन्फिडेंस उस टाइम पे लो लेवल पे जा सकता है. यू माइट बी रिग्रेटिंग कि मैंने ड्रॉप का चॉइस क्यों किया. आई शुड हैव ऑप्टेड फॉर वॉट एवर आई वॉज गेटिंग इन दैट अर्लियर रैंक. तो ये डिसएडवांटेजेस हैं कुछ नीट प्रिपरेशन में ड्रॉप लेने के. अब अगर आपने
ड्रॉप लेने का ऑप्शन ले लिया है तो ड्रॉप लेने की फर्दर दो स्ट्रेटजी है. वन इज फॉर ऑप्टिंग अ कंप्लीट ड्रॉप एंड अदर इज फॉर ऑप्टिंग अ पार्शियल ड्रॉप. नाउ व्हाट इज अ कंप्लीट ड्रॉप? In case of complete drop, a student does not take admission in any of the institutes, right? किसी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन नहीं लेते, आपका सोल एंड होल फोकस सिर्फ और सिर्फ उस एक साल के लिए फर्दर नीट प्रिपरेशन पे ही रहता है. नीट प्रिपरेशन रिमेन्स योर ओनली फोकस फॉर दैट 1 ईयर. आप किसी फर्दर इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेते. लेकिन अगर आप पार्शियल ड्रॉप को ऑप्ट करते हैं, दैट स्ट्रेटजी वुड मीन that you would opt for an institute, a course with an institute for higher studies. At the same time, you would be preparing for your NEET exam. So these two things would go on simultaneously. आप किसी कॉलेज को, किसी हायर स्टडीज़ कोर्स को ऑप्ट भी कर लेंगे और ये भी साथ में रखेंगे कि आप फर्दर जो आपके चॉइसेस, जो फर्दर आपके चांसेस आएंगे नीट अपीयरेंस के, उसके लिए प्रिपेयर भी करते रहेंगे. सो दिस स्ट्रेटजी ऑफ ऑप्टिंग ए कॉलेज while at the same time preparing for NEET for further attempts, this strategy is called partial drop. Okay, so those further courses can be some bachelor in sciences of agriculture or veterinary sciences. Those kind of courses you might opt in under this strategy. So first of all, if you have decided, if you have made your mind to opt for a partial drop, तो partial drop में क्या strategy होनी चाहिए, अब हमें ये discuss करना है, right? So what are the things that you should take care while opting for a partial drop? See, first of all, आप किसी कॉलेज को इसमें चूज करेंगे तो हो सकता है उस कॉलेज में एक अटेंडेंस पॉलिसी भी रिगरसली फॉलो हो रही हो. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं वहाँ पे अटेंडेंस पॉलिसी आपकी नीट प्रिपरेशन में बाधा ना बने. तो ये अटेंडेंस पॉलिसी कॉलेज की आपको पहले ही पता कर लेनी चाहिए बिफोर ऑप्टिंग अ कोर्स इन दैट कॉलेज. फर्दर, खुदा न खास्ता हो सकता है कि नीट attempt that we are going to attend in the further chances, in the further attempts, हो सकता है कि वो भी उतनी फ्रूटफुल ना रहें. तो ऐसा हो सकता है कि हम इस ही कोर्स में जो हमने अभी ऑप्ट कर लिया है उसी कोर्स में हमें कंटिन्यू करना पड़े. तो हमें ये भी इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो कोर्स अब हम ऑप्ट कर रहे हैं, व्हाट आर द चांसेस ऑफ ग्रोथ इन दैट, राइट, एंड व्हाट आर द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट दिस कॉलेज इज प्रोवाइडिंग अस इन दैट कोर्स. तो ये आपको ध्यान रखना है. इन चीज़ों का प्लीज़ यू शुड take care before opting for a college. Now, once you have decided your choice of the college, once you have decided that you are going for a partial drop, now how would you prepare during that time? तो पहले तो एक strong mindset के साथ prepare कीजिए so that with proper dedication you should never be away from your path. To stay on your path, to stay motivated, to stay focused, have a proper mindset first of all. Okay, that is the first strategy, first step for the partial drop students. Never let any symptoms of depression come close to you. हमेशा अपने relatives के साथ, अपने close one के साथ, अपने near and dear ones के साथ communication करते रहें that what do you feel, how are your preparations going on. तो इस चीज़ का communication हमेशा बना के रखें so that you never feel alone on this journey of your drop. Second thing, हो सकता है कि जिस कॉलेज में आपने जिस इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन ले लिया वहाँ पे उस जगह पे आपको उतना टाइम ना मिले या उतनी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले कि आप पूरा 1 ईयर लॉन्ग कोर्स, होल ड्यूरेशन फुल कोर्स आप ज्वाइन कर सकें. तो बेटर है कि आप कुछ शॉर्ट टर्म क्रैश कोर्स ज्वाइन करें आपकी प्रिपरेशंस को रिवीजन देने के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी सिलेबस के गो थ्रू हो चुके हैं. आपको पता है कि किन टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है. सो यू कैन गो फॉर दोज शॉर्ट टर्म क्रैश कोर्स लाइक कोर्सेज, राइट. एंड फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि आकाश बायजू की जो प्रिपरेशन ऐप है आप उसका भी यूज़ करें फॉर योर मॉक टेस्ट, फॉर योर कंटेंट प्रिपरेशन. और इस ऐप में आप 14 डे तक इसको एज अ फ्री ट्रायल पीरियड यूज़ कर सकते हैं where you can see what utility that app is having for you without paying any cost for that, right? So now, what is the biggest constraint while you would be preparing? At the same time you would be attending your institute also. The biggest constraint would be time management. इस एक ही टाइम में आपको बेसिकली 2 कोर्सेज के लिए तैयार कर रहे होंगे. वन,
योर नीट प्रिपरेशन एंड सेकेंड योर कॉलेज कोर्स। तो टाइम मैनेजमेंट आपकी प्रॉपर रहनी चाहिए योर पार्शियल ड्रॉप के दौरान, ताकि मैक्सिमम एफिशिएंट यूज हो सके उस लिमिटेड ड्यूरेशन टाइम का, सो दैट योर प्रोडक्टिविटी इज एट इट्स पीक। ओके, सेकेंड थिंग, हो सकता है कि आपको उतना टाइम ना मिले जितना टाइम में आप पूरा कोर्स एकदम शुरू से लेके एंड तक रिवाइज कर सकें, एंड दैट स्ट्रेटजी इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि आप ऑलरेडी गो थ्रू हो चुके हैं एक बार सिलेबस के, यू नो इन्स एंड आउट्स ऑफ दैट सिलेबस, श्योर, सो यू नो व्हाट आर द टॉपिक्स यू आर वीक एट। अब ये आपकी एडवांटेज है एक तरह से, उन वीक टॉपिक्स को पहले पकड़िए, सो दैट बाय कवरिंग दोज वीकर टॉपिक्स you feel confident about your subject. Sure? So complete your weaker topics first, so that in your preparations you feel you are confident about the subject. Sure? And अब आप एक इंस्टीट्यूट का पार्ट है, आप किसी कोर्स के अंडर हैं, दूसरे कोर्स के अंडर अदर दैन नीट प्रिपरेशन, सो might be the case where you feel distracted sometime. आप खुद को इन डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रखें। श्योर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की आपकी अप्रोच होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, एक एक्चुअल एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर करना है, एक एक्चुअल एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करना है, वो भी आपको ज्ञान रहेगा। सो इट वुड मेक यू फेमिलियर विद योर एग्ज़ाम। Do as much as questions, as much as problem solving as possible. Sure? And investigate also what was the accurate solution. Okay? So mock test देते रहिए आप मॉक टेस्ट भी देते रहिए इस प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि ये मॉक टेस्ट ही हैं जो आपको एग्ज़ाम के साथ फेमिलियर रखेंगे, आपकी स्ट्रेटेजीज़ को रीप्लान करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। मॉक टेस्ट से कभी मत घबराइए, मॉक टेस्ट ज़रूर देते रहिए आप इस प्रिपरेशन के दौरान। दैट वुड ऑल्सो बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो जो अंदर से एक एग्ज़ाम एंग्जाइटी है शायद, वो भी जाती रहेगी, वो भी आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। सो विद all those suggestions, I feel it would be a great strategy if you follow in your partial drop. So please put a like and subscribe our channel for your future notifications and share with your friends. Thank you.